There is little doubt that Lord Ram has touched the life of every Indian, in fact, every Hindu in this country for several centuries. But then, so has the life of Ravan, albeit an evil character, considering the fact that he was also considered as a wise Brahman. However, for the last few weeks, it's this evil character's portrayal in the upcoming movie Adi Purush that has triggered a furor of sorts. Now, whether Saif Ali Khan, albeit with an ugly looking beard, fits into the role of Ravan or not, is joining the director Om Raut of the movie Adi Purush himself. Welcome to the show Catch the Stars with me, Rohan Dua, on the New Indian platform, Mr. Raut. It's actually a privilege to have you, considering the grand success that you had 2.5 years back with an incredible movie, Tanhaji, that sort of left an indelible impression in the minds of young viewers during COVID. Do you think that, or would you have thought that the teaser of Adi Purush would receive such a polarizing response over a period? To be honest with you, to answer your question, I did not expect. I didn't expect the type of, as you said, the polar response. I mean, there have been so many comments which are extremely positive. Ji. There are so many people who are telling me that we are going to make our children go and see this film, or children are putting up posts and saying that, you know what, we want to go see this film. So there's like a polar response, right, when it comes to the 95-second teaser that we put out. I did not expect it because I've said Why this do you before. say so? As I've said before, this is not a film for me. I mean, people are saying that, ye film mein aisa ho raha hai. This is not a film, correct? And if it is a film, it is not my film. It is everybody's film. ये हमने बहुत बार कहा कि ये भारत की कहानी है, correct? So this is everybody's film, correct? But to me, this is way beyond a feature film. To me, this is a mission. To me, this is our passion. Mission 2? 100% mission. This is, I would like to say कि ये हमारे प्रभु राम की भक्ति का प्रतीक है. ये जो हमारा प्रकल्प है, ये हमारा प्रकल्प प्रभु राम की जो हमारी भक्ति है, उसका एक छोटा सा अंश हम पेश करने की कोशिश कर रहे हैं. ये मिशन जो है, जो हम कहना चाहते हैं कि ये मेरे लिए, जैसे हमने हमारे टाइटल में भी कहा है, विक्ट्री, सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईवल. ये गुड जो है, ये गुड जो अच्छाई है, बुराई पर अच्छाई की जीत, ये जो अच्छाई जो है, ये हमारे लिए अच्छाई का मिशन है, अच्छाई का प्रतीक है. अब मैं इसको अगर थोड़े विस्तार से कहना चाहूँ जी, तो मैं ये मेरे दोस्तों को, मेरे असिस्टेंट्स को, मेरे आजू बाजू में जितने लोग हैं, मैं उनको यही चीज़ कहता हूँ कि ये गुडनेस क्यों है. व्हाट इज़ दिस गुडनेस? हम मनुष्य हैं, हम एक समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, एंड आवर सोसाइटी is a balance of good and bad, correct? Now, where is this good coming from? This good coming from that one man, Maryada Purushottam, which is the beginning of the goodness. ये ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम है जो मनुष्य में जितने भी उत्तम गुण है, जो है, जो अच्छाई जो है, वो सारे गुणों से सर्वगुण संपन्न ऐसे हमारे प्रभु राम है. बहुत बार हमको बोला जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारे सीनियर्स है, वो हमको सिखाते हैं कि आप ये करें, ये ना करें, आप ये करना चाहिए क्योंकि प्रभु राम की ये सीख है. तो वो हमारा डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, प्रभु राम का जो हमारे ऊपर हुआ है डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, जो हमने बड़ों से सुना है, जो हमने किताबों में पढ़ा है, वो उनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है जी. पर ऐसा एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है जो बहुत ही इनडायरेक्ट चीज से हुआ है, जो हमको कभी सिखाया नहीं गया कि हमको ये प्रभु राम के जीवन से आता है. रामायण का मतलब क्या है? द वे ऑफ राम, correct? The way Prabhu Ram lived, that is Ramayana, correct? It is much bigger, correct? Now, when you are working on something which is so sacred, so pious, so large, and to have a particular group coming to you and trying to, when I say group, they're amongst us only. वो सारे हमारे हिंदू भाई बहन हैं जिनकी थोड़ी निराशा हुई है इसके ऊपर, ये टीजर देख के, वो सब हमारे ही है. पर एक छोटा, एक जो पोलराइजिंग करने वाला जो ये है, वो देख के थोड़ा दिल तो टूट गया, थोड़ा बुरा भी लगा, और ऑनेस्टली एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि इसके पीछे बहुत ही एक सच्चाई से और बहुत ही एक सद्भावना से, एक पवित्रता से हम इसके ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन मैं अगर कहूँ मिस्टर राउत, हो सकता है आपने एंटीसिपेट ना किया हो इतना पोलराइजिंग रिस्पॉन्स. बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट, नॉट दैट
I want to slam you for launching such a beautiful movie because the subject is so beautiful that it touches the chords of every Indian and every Hindu, like I said in the beginning as well. और हमें भी बड़ा फक्र महसूस होता है कि जब भगवान राम के उस दशक में जब सुप्रीम कोर्ट ने भी अयोध्या राम जन्मभूमि में इस्टेब्लिश कर दिया हो कि वही राम की जन्मभूमि है इतनी लड़ाई के बाद में भी। तो जो एक ग्राउज है, if I may ask you this question, one of the biggest grouses of people is that Saif Ali Khan Saab is looking more like a barbaric Islamic invader, whether it is Khilji or Aurangzeb or Babur. How do you look at this sort of criticism? Do you agree with this criticism, or was this a conscious effort to put a beard on his face? So I'll tell you what. जी, आप जो भी इस्लामिक वॉरियर्स जो इन्वेडर्स थे हमारे ऊपर, जिन्हें हमारे ऊपर जाती की, आप जो उनके नाम ले रहे, क्या वो अच्छे लोग थे? जी नहीं, मुझे तो नहीं लगता वो अच्छे लोग थे। बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगता कि ईविल जो है, जो दुष्कर्म जो है, जो एक डिमोनिक जो रिप्रेजेंटेशन है, वो हर समय अलग अलग होते आ रहा है। राइट, पुराने ज़माने में इवॉल्व हो रहा है। इवॉल्व होता रहा है और उसका रिप्रेजेंटेशन चेंज होते रहा है। हम जब पुराने ज़माने में देखते हैं तो जैसे कि हमने दूरदर्शन पे, जब हम बड़े हो रहे थे, जब हमने रामानंद सागर सर की जब रामायण देखी थी दूरदर्शन पे, तो उसमें रावण बड़ा मूंछों वाला, लंबे बाल वाला, ऐसा ऐसा करके दिखाया था। वो ज़माने का डिमोनिक जो रिप्रेजेंटेशन था वो वैसे था। अब ज़माना चेंज हो गया, हम आगे बढ़ते रहे हैं, और अब आज के ज़माने में जो डिमोनिक मुझे दिखता है, जो ईविल मुझे दिखता है, वो ईविल और जो नाम जो आपने कहे वो 100% ईविल है। वो 100% ईविल है, इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हो सकती। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट नहीं है। वो मैं एडमिट करता हूँ कि ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट नहीं है। एक कलाकार के नाते जब मैं वो कैरेक्टर को जब स्केच कर रहा था, मैं था, हमारे वेशभूषा, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, हमारे मेकअप डिज़ाइनर, हम तीनों एक्चुअली नेशनल अवार्ड विनर हैं, विक्रम गायकवाड़ सर, नचिकेत बारवे भी। जब हम बैठ के जब इसको डिज़ाइन कर रहे थे, तो हम सब साथ में बैठ के जब हम ड्राइंग, बहुत आइटरेशंस हुई, और जब ये फाइनल फिगर जब सामने आई, ये जो ऐसा लुक जब सामने आया, तब सबको लगा, और मुझे अधिकतर लगा कि ये डिमोनिक फिगर है। अब इसको किसी तरह से दिखाने का ये बिल्कुल ये नहीं था। जो आज के ज़माने में जो डीमन हमको जिस तरह से दिखता है, उस तरह से मुझे रावण दिखता है। वो ईविल का प्रतीक है। तो लेकिन लोग उल्टा आप ये भी कह सकते हैं कि आप फिर इस्लामोफोबिस्ट हैं कि आपने दाढ़ी वाले को दिखा दिया कि नहीं। दाढ़ी तो मेरी भी है ना। दाढ़ी तो बहुत लोगों की होती है। हमारे बहुत पूजनीय लोग जो है उनकी भी दाढ़ी है। तो दाढ़ी के ऊपर ये वैसे दाढ़ी के बेसिस पे है नहीं, बट जो उनका जो किरदार है, वो जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर डेफिनेटली बहुत नेगेटिव है। और नेगेटिव आप किस तरह से दिखा सकते हो? नेगेटिव आप एक उसका प्रतिबिंब होना चाहिए, एक रिफ्लेक्शन होना चाहिए, और वो रिफ्लेक्शन मुझे वो लुक में दिखता है। अब उसके पीछे अगर मैं देखने जाऊं तो आपके मन में कोई किस प्रकार का संदेह है कि रावण डिमोनिक नहीं था या रावण ईविल नहीं था? ये हर साल हम जब दशहरे के दिन जब प्रभु राम ने उनका वध किया था, हम वध कहते हैं, रावण वध कहते हैं। वध ये डीमन का ही होता है, करेक्ट? जब हम प्रभु राम और पुतला भी जलाते हैं, तब हम हर साल उनका पुतला जलाते हैं। ये तो सालों से चली आ रही है। ये जो हमारी प्रथा है रामलीला की, हमारे इतने सारे कलाकार देश में, छोटे से गांव में हो, बड़े शहरों में हो, सब जगह रामायण कर रहे हैं, करेक्ट? हम भी ये कोशिश कर रहे हैं। हम भी उतने छोटे कलाकार हैं, और हम भी हमारी तरफ से, जैसे कि प्रभु राम का जब सेतु बना था, करेक्ट, जब रामेश्वर से होके, धनुष्यकुड़ी से होके लंका तक जब सेतु बना था, तो गिलहरी आई थी, और गिलहरी ने अपनी तरफ से एक छोटी सी जो अपनी कंट्रीब्यूशन थी, उससे कई गुना छोटी कंट्रीब्यूशन हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, तो ये डीमन है, और ये डीमन ही रहेगा। एक्चुअली आई एम वेरी कंटेंट टू कन्वर्स विद यू where I discover the fact in this conversation कि आपकी हिंदी उतनी ही दुरुस्त और बड़ी स्पष्ट है, और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मैं कहूँ तो। बट ये सवाल बड़ा एक लाजमी है कि आपने अपनी जो एकेडमिक क्रेडेंशियल्स लिए वो यूएस जाके भी लिए, और एक तरफ आपके पिता थे, मैं कहूँगा कि उनका भी बड़ा ज़बरदस्त करियर रहा। एक तरफ वो पत्रकार भी थे, भरत राव जी, और फिर मेंबर पार्लियामेंट भी बने राज्यसभा के, 6 साल का एक टेन्योर भी रहा। तो कहीं ना कहीं उनका भी इन्फ्लुएंस जो है वो आपके ऊपर रहा, हिंदुत्व का हो या एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक क्रेडेंशियल्स का, और दोनों का जो एक ये मिलाप हुआ वो आप में नज़र आता है। हाँ जी, बहुत बड़ा प्रभाव है मेरे पिताजी का और उनकी सीख का मेरे ऊपर। और सच कहूँ तो मेरे तीनों फिल्में जो हैं,
मेरी पहली फिल्म जो थी वो लोकमान्य तिलक जी के विचारों पर, उनके उनके जीवन पर थी। लोकमान्य तिलक जी जिसे फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है ब्रिटिशों के ज़माने पर, और जो एक बहुत ही बड़े पत्रकार थे, केसरी, मराठा जैसे न्यूज़पेपर के वो एडिटर रहे, उन्होंने वो शुरुआत की। तो लोकमान्य तिलक जी को हमारे यहाँ पे, बिकॉज ऑफ माई फादर, वी हैव ऑलवेज लुक्ड एट हिम एज अवर गॉड, एज जी। अवर दिस। तो वो एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज तो हम सबके हिंदुत्व के प्रणेता जी, हैं, हम जी। सबके भगवान हैं। राइट। तो वो भी सीख मुझे घर से ही मिली। और प्रभु श्री राम, ये सब जो है, ये सबको लेते हुए आज की सोसाइटी में इन सबके विचारों का, इन सबकी सीखों का, ये जो बड़ी बड़ी हमारी तरफ से जितना हमको समझ में आया, ये समझना मुमकिन नहीं है। जी। रामायण ये इतनी बड़ी गाथा है। प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उनका चरित्र इतना बड़ा है कि वो हम समझ ही नहीं सकते। जी। मैंने बहुत बार कहा है कि जीवन के हर आयु में या सदियों से हर वक्त हमें रामायण या प्रभु राम के जीवन से एक कुछ नई सीख मिलती है। हर वक्त, जब मैं छोटा था मुझे कुछ अलग समझ रहा था, आज मुझे कुछ अलग समझ रहा है, और आज सालों बाद मुझे कुछ और समझ में आएगा। तो जो पिता के आपके थॉट्स थे, evolving. I'm evolving. We all are evolving. राइट। It is impossible to even try to do this onto a celluloid. Hence, I said that it is a very small Like and a humble गिलहरी, you attempt. said, like a Like a squirrel. गिलहरी, like a squirrel, right? ये गिलहरी की तरह हमारा बहुत छोटा। तो पिताजी का जो इन्फ्लुएंस रहा आपके ऊपर। बहुत हर for every child, their father is their first superhero. Correct. Obviously, so is the story with me. तो कितना आपको फक्र भी होता है कि वो दौर था जब पार्लियामेंट में जाया करते थे, तो आप भी शायद बच्चे होके उनके साथ में जाया करते होंगे उन दिनों। हाँ, मैं दिल्ली बहुत में। मैं गर्व है बहुत कि हमारी देश की सबसे बड़ी पंचायत, उसमें मुझे मेरे पिताजी की वजह से वो जो जाने का ऊपर मौका गैलरी मिला। में मैं हर सेशन में जाता था, डिबेट सुनता था। क्या बात है। क्या बोलते हैं, किस तरह से पॉलिसीज की जाती है, वोटिंग कैसे, वो बड़े बड़े स्पीचेस राज्यसभा में, तो मतलब स्टॉलवर्ड्स, Correct. जिस तरह से Absolutely. उनकी स्पीचेस, Absolutely. सुषमा जी was there, वेंकैया जी was there. This is before 2014. Correct. 2014 के पहले की बात है। 14 के बाद तो obviously we have reached some other highs when it comes to debates and speeches. करेक्ट। करीब से वो देखने का मौका मिला। आप लोग कहाँ रहा करते थे उन दिनों फिर दिल्ली? मौलाना आजाद रोड पे, मीना बाग में, जी। विज्ञान भवन के बिल्कुल Right. अपोजिट। तो वहाँ पे तो घर। नेशनल कैपिटल का भी एक बड़ा एक लुत्फ होता है कि एनसीआर, इट्स आज भी मुझे जब दिल्ली जाने का मौका मिला कुछ दिनों पहले, जी, तो वो दिन अशोक, याद आ गए, हाँ, मेमोरीज रिफ्रेश हो हाँ, गई। इफ यू गो एंड स्टैंड देयर बिटवीन नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक, एब्सोल्युटली। हम बहुत गर्व से कहते थे ये देश का दिल है, ये हमारे भारत का दिल है। बिल्कुल। और जब आप वहाँ पे खड़े रहते हो अशोक जी, चौक पे, जी। और व्हेन यू स्टैंड देयर, it's the power of the democracy that you witness. Correct. It's a mesmerizing feeling. I also want to come back to this film as well, because it is one of the most debatable topics today, whether on social media or among the millennials. कितना आपके लिए डिफिकल्ट था रामायण जैसे टॉपिक को चूज करना? Is it not tricky to choose Ramayana in these times of millennials, or you love to undertake such a risky proposition considering that it's a subject which is close to your heart? No, it is. and that of the It is every not risky. Indian. It is not risky. You've said it rightly. Subject close to our heart. It cannot be a risk. It is. जैसे मैंने पहले भी कहा कि रामायण या प्रभु राम की गाथा इतनी बड़ी है कि हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम कितना भी समझने की कोशिश करें, हम जितने भी एफर्ट्स कर ले, वो ऊंचाई हम पहुंचना नामुमकिन है। उसके कई छोटे सेट में हम पहुंच सकते हैं। वी कांट रीच देयर, इट इज नॉट पॉसिबल। एट द सेम टाइम, जब मैं ये सोचता हूँ और जब मैं ये कहता हूँ कि मुझे, जैसे आपने कहा, मुझे बहुत लोगों ने कहा, जब मैं ये चालू कर रहा था, जब मैं लिख रहा था, स्क्रिप्ट लिख रहा था, तो मुझे बहुत लोगों ने कहा कि यार, ये इन टुडेज टाइम you really want to do this, and I said yes, today is the only time when we can do this. ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पहले हमको करना पॉसिबल ही नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं था। हम नहीं कर पाते थे। हम कैसे कर पाते थे? मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ एक निर्देशक के तौर पे, एज ए डायरेक्टर के तौर पे, जी। और मेरा ये नसीब अच्छा है, खुशनसीबी है मेरी। आई एम फॉर्चुनेट that I am getting a chance to do something like this. Before this, it was not possible. But then, Mr. Roth, I mean, would you not agree the fact that
for several decades, this country was forced to witness derision of Hindu gods, people scoffing at the subjects like this, not encouraging science from a certain ideological outfits, not disallowing such subjects to be shown on the celluloid. 100%. वो एक अगर मैं कहूँ तो ये एक दौर एक, बहुत एक, एक बहुत विंग बड़ा दौर रहा है। एक जो विंग थी वो आने नहीं देती थी और मजाक उड़ाया जाता था हिंदू 100%। भगवानों का कि भगवान शिव तो ऐसे दिखते हैं, 100%। प्रीस्ट्स ऐसे दिखते हैं। 100%। एंड आपको आई वो वुड दुख- लाइक टू बिलीव, दो बहुत दुख होता है, बहुत बहुत तकलीफ होती है। हमारी चीजों को आगे लाने नहीं दिया। हम्म, हमारी चीजों को, हमारी जो विजय की गाथा है, हमारे जो परमवीर है, हमारी जो ग्रेट इंडियन हिस्ट्री है, हमारा जो इतिहास है, भारत का जो इतिहास है, जी। वैभवपूर्ण इतिहास है, ये इतिहास सही ढंग से आगे लाने नहीं दिया। ये बहुत कौन बहुत लोग फिल्म थे मेकर्स जो हो गए, बहुत फिल्म मेकर्स हो गए जो जिन्होंने शायद कोशिश भी की, जरूर कोशिश की, बट उनकी आवाज बाहर तक आने नहीं दी। ये बहुत बड़ा एजेंडा रहा है, और फिल्म का नहीं, ये पूरी आर्टिस्ट पूरी तो क्या इसमें। ऐसा कुछ था कि कोई लेफ्ट विंग टाइप के लोग थे जो ये आप मेरे से ज़्यादा ज्ञानी हैं, और आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आपको भी पता है कि एक बहुत बड़ा एजेंडा चला था बैक में, जो बहुत फिल्म मेकर्स को और बहुत प्रोड्यूसर्स को, बहुत सारी बड़ी बड़ी स्टूडियोज हैं आज, दे वर नॉट एबल टू डू व्हाट दे वांटेड टू डू, they were but today the time is different. We are getting so many amazing films. But does it Correct? pain you that you went through, despite being a Mumbaiker, despite being a Marathi, someone who grew up in this lovely town with an incredible talent around yourself, that you people were discouraged? See, I'll tell you what, I was not active in the films at that time. Correct. My first film released in 2015. This is something that I'm saying from the knowledge that I have Right. while talking to people around me. Fortunately, I was born as a filmmaker in a different era, but I've heard it from people in the past that they were not encouraged to make things like that, or even if they were, Things it's like not. you mean movies on Ramayana or epics? Well, certainly, right? I mean, South has seen a film on Ramayana. That has happened in the past. We've not had a chance to do it. Correct? And again, रामायण एक सब्जेक्ट है, हमारे कितने बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, इनके ऊपर फिल्में बनी नहीं। ऐसे नहीं कि फिल्म मेकर्स को करना नहीं था, but situation was not such. The society was very different, and today the society is very different. It was not conducive at that time. It was told to us that it is not conducive. अगर मैं बात करूं एक क्रिटिसिज्म की भी, जहाँ पे आपने मेरे को बड़ा अच्छे से समझाया कि हम बारबारिक इस्लामिक इन्वेडर देखें या ना देखें, लेकिन VFX की बात करूं तो many people say that Brahmastra, the movie by Ranbir Kapoor and Alia Bhatt and Karan Johar Productions, has sort of raised the bar for the VFX. I've heard, and I'm a huge fan of Ayan's work. I haven't had a chance to see Brahmastra yet because I've been busy working on this film. Sorry, I cut your question. But do people expect the same from VFX? Because from Adipurush, because they say that your VFX in that 95-second trailer do not look that mesmerizing. Is that criticism valid?